Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn our science chapter number 7, that is air. So you have already learned about the word air in your lower classes. So today in this chapter we will learn about the composition of air, about the properties of air, how we breathe, that is the process of breathing, as well as we will learn about air pollution and its prevention. So we will start with our chapter air. In this chapter you have the word matter. So matter is what? Matter is nothing but the things that has mass and occupy space is called the matter. So anything that has mass and occupy space is called matter. So if you are asked for the definition of matter, you have to write this. So आप एक पेंसिल से इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका definition of matter. So anything that has mass and occupy space is called matter. So in simple words, matter meaning is the thing which has some weight. Mass मतलब क्या होता है? कोई उसका भारीपन, weight, and the thing also occupies the space. That means whenever you are keeping that thing, it occupies some space. कोई जगह लेता है ना? तो उसे ही हम matter कहते हैं. Okay? तो matter is anything that has mass and also occupies space. तो उसका weight होना ज़रूरी है और वो कोई जगह को वो ऑक्युपाई करना चाहिए. ऐसी चीज़ों को हम matter कहते हैं. तो जो भी चीज़, everything, whatever is around us is matter because they all have mass as well as they all occupies the space. Suppose I am having this book, है ना, ये बुक मेरे पास है, तो ये भी एक काइंड का मैटर है. कैसे? क्योंकि देखिए आप बुक को जब आप उठाते हो तो उसको वेट होता है ना, उसका मास है. फिर हमने बुक जो ऐसे रखे हुए हैं तो ये स्पेस भी लेता है ना. तो बुक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर. नाउ इफ यू लुक एट दिस pencil also has some weight, isn't it? And when we are keeping it somewhere, it also occupies the space. क्योंकि जहाँ पे पेंसिल रखा हुआ है वहाँ पे तो हम कुछ नहीं रख सकते, है ना. उसके ऊपर रख सकते हैं, पास में रख सकते हैं, लेकिन वही जगह पर कुछ नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि इसने एक स्पेस कवर किया हुआ है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज मैटर. सो these matters are of different states. So जो भी मैटर हम पढ़ रहे हैं वो और हम आसपास देख रहे हैं, they all are differentiated into 3 different state. Okay, so whatever matter exists in our nature, जो भी चीज़ें हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो भी चीज़ें हमारे नेचर में है, वो सभी चीज़ों को हम मैटर करते हैं. लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं. जैसे कि अब मैंने आपको बुक और पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है. Okay, these two are solid form of matter. Okay, because they have the weight and they also occupies the space. Okay, so this is a solid form of matter. Then we have liquid form of matter. So liquid form means if you take the example of water, आप water का example लेंगे तो क्या होता है? देखिए, वाटर को यदि हम ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है? ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का जो भी स्पेस है वो ऑक्युपाई कर लेता है ना.
और जैसे ही हम वेट लेते हैं, जैसे हमने यदि एम्प्टी ग्लास का वेट लिया तो वो सर्टेन वेट दिखाएगा, और जैसे हमने पानी भर के उसका वेट लिया तो हमें वो डिफरेंट वेट दिखाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि वाटर का भी वेट होता है। सो अगेन you from this experiment you can say that water also has mass as well as it occupies the space. Okay, so this is a liquid form of matter. Okay, now if you consider the gas form of water, the gas form of matter, then what will happen? अभी आप जैसे कि आप एक बलून लोगे, ठीक है, बलून। सो बलून में क्या है, जब वो उसमें हम एयर नहीं भरते हैं, जब हम फूंक मार उसे जब फुगाते नहीं हैं हम, ठीक है, उस समय क्या होता है, उस समय बलून कैसे कैसे रहता है, आपको पता है कैसे रहता है? वो एकदम फ्लैट रहता है ना। तो फ्लैट रहता है, तो जब हम उसे हाथ में उठाते हैं तो उसमें नहीं के बराबर वेट होता है, बहुत ही लेस वेट होता है। लेकिन जब हम बैलून को फुगाने के लिए जाते हैं, व्हेन वी आर blowing air into the balloon, what will happen? The balloon will be inflated मतलब वो फूक जाता है, ठीक है, फूक जाता है। तो जैसे कि हम और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें कि हम जो हमारा ऐसे बैलून रहता है, जो बिना फुगाया हुआ बैलून रहता है, उसको यदि हम वेट करेंगे तो यू विल सी दैट सर्टेन वेट विल बी शोन, एंड देन जैसे हम उसे ब्लो करके फुगाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, उस समय क्या होता है, जैसे हम उसका वेट लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो वेट में भी कोई ना कोई चेंजेस आ रहा है। सो इससे आपको पता चल रहा है कि जो एयर हमने ब्लो करके बलून में भरा था, वो एयर का भी सर्टेन वेट होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका एग्जाम्पल कि एयर ऑल्सो और द गैसेस ऑल्सो हैव वेट. Okay, gases also have weight. So now from all these examples you can say that all the three matters, that is solid, liquid and gas, all these matters have mass as well as they occupy space, है ना। So this is because of these two properties, matters are said to be existing in nature. Okay, so now we will learn why we are differentiating the matters into different states, that is solid, liquid और gas. Okay, हम अब पढ़ेंगे कि हम क्यों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो क्यों हम डिवाइड करते हैं और इसका क्या प्रॉपर्टीज है जिससे कि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट वी विल सी हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, now see, I have drawn a chart for you where from you can see the properties of solid, liquid and gas. So you can see that three states of matter are there: solid, liquid and gas. Now in solid you have properties like particles are closely packed. Okay, so first point in your solid matter is that their particles are closely packed, and in case of liquid, particles are not so closely packed, and in gas you have particles are very loosely packed. Now you can see how we can differentiate between these particles. Okay, so let us see in our diagram. Now you can see the meaning of this, particles are closely packed. अब आप देख सकते हो कोई भी सॉलिड में ये अंदर जो मैंने बनाए हैं ये है आपके पार्टिकल्स। तो यहाँ देख पा रहे हो हर एक पार्टिकल एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड है। आप देख पा रहे हो, देखिए हर एक जो पार्टिकल है वो कैसे है, एकदम क्लोजली पैक्ड।
दैट मीन्स दे कैनॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस. इतना वो टाइटली पैक्ड है कि वो एक जगह से हिल ही नहीं सकता है. इस कारण क्या हुआ है, इस कारण दे हैव द फिक्स शेप एंड साइज. सो इफ पार्टिकल्स इज नॉट मूविंग, okay, so it cannot changes its shape or size. So as particles are not moving, that is why they have, the solids have fixed shape and size. Okay, now if you move to this liquid, then you have the statement that particles are not so closely packed. सो आप देख सकते हो, अभी मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है इसमें आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है उसके बीचों बीच आपको थोड़े बहुत स्पेस दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो सकता है, ये मूव हो सकता है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो सकता है, ये पार्टिकल थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो सकता है ना. सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव. सो दे कैन मूव inside the space. Okay, and what is here, what is written is it also takes the shape of the container. तो यहाँ पे जब सॉलिड का आप देख रहे हो तो हमारे पास जो पेंसिल है, हम ये जो पेंसिल है ये आपका सॉलिड है, ठीक है. तो सॉलिड को यदि आप देखोगे तो पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है कि ये मूव ही नहीं हो सकता. इसलिए पेंसिल का जो शेप ऐसा है, ये शेप वैसे की वैसे ही रह जाता है. ओके, नाउ इफ यू कंसिडर द लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वो थोड़ा सा अपना स्पेस में मूव कर सकता है पार्टिकल. इसीलिए यदि हम वाटर को, इफ यू आर टेकिंग वाटर इन ए ग्लास, वाटर को हम ग्लास में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, किसका शेप आ जाएगा, वाटर में ग्लास का ही शेप आ जाएगा, है ना. सो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. तो वाटर का शेप क्या हो जाएगा, ग्लास के शेप जैसा ही हो जाएगा. नाउ इफ वी टेक द वाटर इन अ बॉटल, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, द वाटर विल टेक द शेप ऑफ अ bottle itself. Now if we take the water in a water tank, that time it will take the shape of water tank. And why this happens, this happens because the particles can move. particles एक जगह से दूसरी जगह पर move हो सकते हैं, इसीलिए ये particles क्या करते हैं, they take the shape of container. Okay, now let us move to the third state of matter, that is gas. Now gas, here what is written is particles are very loosely packed. तो आप देख पा रहे हो ये जो पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं ये कितने दूर है. देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल रहा था इन बिटवीन द पार्टिकल्स. नाउ हियर यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर बिटवीन द टू पार्टिकल्स. आप देख पा रहे हो कि दो पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस है ना. सो दैट मीन्स इट इज वेरी लूजली पैक्ड. सो इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड शेप. ओके, so they do not have any fixed shape and particles move randomly मतलब ये particle randomly मतलब इधर उधर किधर भी वो पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं. तो ये पार्टिकल यदि यहाँ पर आ गया और ये पार्टिकल यहाँ, तो शेप ऑटोमेटिकली इट विल चेंज, इजंट इट. बट यहाँ पर जो लिक्विड में है यहाँ पर क्या होता है, आपका जो स्पेस है वो लिमिटेड है. सो इट कैन मूव, बहुत ही थोड़े से जगह पे ही वो मूव कर सकता है. बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो इट कैन मूव रैंडमली बिकॉज इट इज द पार्टिकल्स आर गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पेस. दैट इज वाई गैस फ्रीज मूव्स फ्रीली. ओके, इसलिए क्या होता है, गैस जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है. तो सॉलिड में आप देख पा रहे हो कि पार्टिकल्स को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है हिलने डुलने की, है ना. वो अपनी जगह पे ही अब ये होता है, शेक होते रहता है, मूव होते रहता है. इट कैन नॉट चेंज इट प्लेस. ओके, बट हियर इन लिक्विड इट कैन मूव एंड चेंज इट्स प्लेस very very little. Okay, now here you can see lots of spaces there. That is why the particles can move randomly, freely from here and there. So
keeping in mind these properties, we can say the whether the thing is solid, liquid, or gas. Okay, so when we see something solid, so we can say that the particles are closely packed. That is why it gives you some fixed shape. Okay, so anything solid, any matter which is solid have fixed shape. वो शेप उनका चेंज नहीं होता है. लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में टेक्स द शेप ऑफ एनी ऑफ द कंटेनर वेयर इट इज प्लेस्ड. Okay, and gas never have any fixed shape. So this is the difference between solid, liquid and gas. तो आपको डिफरेंस पूछेंगे तो आप ये जो चार्ट है ये पढ़ लीजिए और आप आराम से इसका डिफरेंस बता सकते हैं. In your book also they have given you a picture of, see here, paper, molecules of paper. तो पेपर के जो पार्टिकल्स है आप देख सकते हो कि वो एकदम क्लोजली पैक्ड है, and that is why paper has certain shape, isn't it? Now if you look to the water in a container, you can see the molecule of water. The particles have certain space in between them, so they are not closely packed, so they do not have fixed shape, and they take the shape of the container wherever it is poured. Okay, now you can see the gas. The particles are having interspace. Most of the interspace, that is, there is space in between the particle is more. Okay, so that is why it can move randomly from here and there. Okay, so this is how it has been shown to you with the help of picture and example. Now as we know that we have to learn about air. So air is in which state? जो air है वो कौन से state में आता है? Solid में आता है या liquid में आता है या gas में आता है? So you also know that air comes under gaseous state. Okay, so air is a mixture of gases. Okay, so air is a gaseous state and air is having mixture of gases. मतलब air के अंदर बहुत सारे different types of gases हैं जो together, all together gives you the air. Okay, so we all are familiar that air is present around us. Now we know, everybody knows that we have air around us. Okay, without air we cannot survive, isn't it? So we know that air occupies the spaces in the earth. Okay, all the whatever space is there, air occupies all the spaces. And we also know that air cannot be touched, air cannot be smelled, air cannot be seen, isn't it? तो एयर जो हमारे आसपास जो एयर है, हम उसको क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते. उसको हम फील कर सकते हैं? यस, वी कैन फील इट. देन we cannot smell it and we cannot touch it, only we can feel it. तो कैसे हम फील कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास, हम यदि कोई बंद कमरे में है तो हमें सफिशिएंट एयर नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ हो जाती है. तब हमको पता चलता है कि एयर हमारा कम पड़ रहा है ना. और यदि हम ओपन स्पेस में रहते हैं तो वी डू नॉट फील दैट वी आर लिविंग इन ए कंजस्टेड प्लेस. ओके, सो दैट इज द फीलिंग दैट इज गिविंग यू दैट एयर इज present. As well as whenever you see the wind, whenever wind is blowing, how you can see? You can look to the leaves of the trees, then you can say that wind is blowing, because leaves will give you the rustling sound, isn't it? And then whenever you are hanging your clothes on a clothesline, that time also you can see that clothes are swaying.
ओके, क्लोथ लाइन, जब भी आप क्लोथ्स को अपने डोरी पर डालते हैं तो कभी कभी आप देख पाते हो कि क्लोथ्स क्या हो रहा है, क्लोथ मूव हो रहा है ना, तब आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे हवा चल रही है. सो whenever you see certain things that is moving or swaying, that time you can say that air is there. Okay, so you can feel the air is blowing. So that is how you can say that air is present everywhere. Now we will see that what is the composition of air. Composition of air means we have already said, हमने पहले ही आपको बताया था कि air is a mixture of gases. So mixture मतलब कौन से गैस एयर में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं composition. Composition means एयर के अंदर क्या क्या gases present है. So mainly air has nitrogen and oxygen. So main gases whatever present in air is nitrogen and oxygen. So air में nitrogen और oxygen maximum amount में है और दूसरे जो gases present है वो बहुत ही small amount में present है. So दूसरे gases are carbon dioxide, argon and other gases which are present in very small quantity. So mostly which gas is present? Nitrogen and oxygen. So nitrogen is the most abundant gas present in the air, followed by oxygen. Oxygen is needed by animals and humans to breathe and survive. It is also necessary for burning. Carbon dioxide is used by plants to carry out photosynthesis. Okay, and nitrogen is present in the air and which is very useful for the growth of plants as well as animals. Okay, so nitrogen जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद डिफरेंट गैसेस आर देयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. Okay, and these gases are present in very small amount. So nitrogen is useful for all the living things and for the growth of the living things, and oxygen is necessary for the breathing of human beings and animals. Carbon dioxide is necessary for the plants for their photosynthesis, isn't it? Then there is water vapor that is also present in your air. So these compositions, that is the mixture of gases, whatever is present in air is very important for the nature. Now you can see that I have written the composition of air, that is mixture of gases. So the abundant amount of, that is the maximum amount present is nitrogen. Okay, so nitrogen gas is abundantly available in your air. Okay, एयर में नाइट्रोजन गैस आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद है ऑक्सीजन, देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस. तो जो अदर गैसेस हैं और इनका जो भी परसेंटेज है आपके अर्थ में वो आप आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे. ठीक है, सो आपको इतना सिर्फ जानना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस आर देयर इन योर air. Okay, and maximum amount of nitrogen gas is present in air, and afterwards you have oxygen and other gases are present in very small amount. Okay, so you can see that the nitrogen is useful for the growth of living things, then oxygen is useful for breathing, and carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis. Argon and other gases are also useful to the living things in our earth. Okay, so this is what you have to know about the composition of air.
Now you have learned that the mixture of gases is present in the air. You also have air germs, smoke, dust particles. ओके, सो एयर में आपने पढ़ा है कि गैसेस प्रेजेंट है जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिविंग बीइंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एयर में आपको जर्म्स भी मिलेंगे, स्मोक मिलेंगे और डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे. ओके, एंड दीज ऑल थिंग्स आर नॉट यूजफुल और दे आर harmful for the living things in our environment. Okay, then also this air contains this germ, smoke and dust particles. ठीक है, तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस आपने पढ़ा था वो तो हमारे यूज के लिए था, है ना, लेकिन ये जो चीजें एयर में प्रेजेंट है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल थिंग्स है. Okay, and because of this only there is pollution. When more amount of germs, smoke and dust particles are there in the air, you get air pollution. Okay, so this is about the composition of air. Now you can see that there are different properties of air as well. Okay, so first property is air occupies space. Second one is air has weight. Third is air expands on heating. And fourth is air supports burning. So जो property है air के, मतलब air हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 property मैंने लिखा है. उसमें से फर्स्ट है एयर ऑक्यूपाई स्पेस. सो आप कैसे पता चलेगा कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज एयर इज ऑक्यूपाइंग सर्टन स्पेस, एयर जगह लेता है, ये आपको कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो हम इसे कैसे एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं. नाउ सी, आई हैव टेकन द property number 1, that is air occupies space. Now you can see that I have drawn 2 diagrams here. So this is the diagram of a deflated tire and this is a balloon. Deflated मतलब जिसमें हमने एयर नहीं भरा है. ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो हम क्या करेंगे, ये जो टायर है इसमें हम एयर भरते हैं. ठीक है, सो जैसे ही हम टायर में एयर भरते हैं तो टायर किस तरह का दिखता है. यू कैन सी द टायर बिकम्स लाइक दिस, isn't it? And when you are blowing air inside this balloon, the balloon also gets blown. Okay, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था टायर का और बलून का, ये आप देख सकते हैं इसका साइज एकदम छोटा है और उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर एयर भरा है तो आप देख सकते हो ये कैसे फूक गया है ना. तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एयर ने एक स्पेस को ऑक्युपाई किया है. उसने ये टायर के अंदर जब हमने भरा है एयर उस टाइम उसने एक स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया है. जैसे ही स्पेस को ऑक्युपाई किया है तो ये वाला क्या हो गया है, इन्फ्लेटेड. इन्फ्लेटेड मतलब इनका साइज बढ़ गया है. तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. ओके, सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट. Now if you look to the second property, see I have written here second. Again what I did, I have taken the deflated tire and balloon. मैंने यहाँ पर देखिए बिना हवा भरे हुए टायर को और बलून को ले लिया है. तो आप ये क्या करोगे, इन दोनों को वेट बैलेंस में वे करोगे. तो जैसे आप वे करोगे तो आपको एक सर्टेन वेट मिलेगा, है ना. वे करोगे तो आपको एक वेट मिलेगा. Now as you can see that I have taken again the balloon and the tire. So these are the deflated one. So what deflated means, इसमें हवा नहीं है. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यदि मैंने इन दोनों का वेट लिया कोई भी बैलेंस में तो क्या होगा, इनका वेट एक सर्टेन वेट आपको
मिलेगा, ठीक है, वेट बैलेंस में। फिर हमने क्या करना है, हम इन दोनों में एयर को ब्लो करेंगे। तो फिर ब्लो करने के बाद हमको ऐसा शेप का मिलता है। तो व्हाट वी विल डू अगेन, वी विल जस्ट गो टू द वेट बैलेंस एंड अगेन वे दिस टू। इन दोनों को भी हम वे करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब हमने इन दोनों को वे किया था तो वो वेट इन दोनों को के वेट से आपको कम मिलेगा। तो दिस शोज दैट एयर हैज वेट। ओके, देन योर थर्ड property is air expands on heating. Now the third property is, you can see here the particles of air, they are moving freely over here. Now as soon as you heat it, आपने इसमें कोई हीटिंग का कुछ हीट किया इसको, ठीक है आपने, तो आप क्या देखोगे, हीट करने के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये और भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। हीटिंग एंड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। ओके, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे और क्या होगा, जो भी आपके अंदर के जो मटेरियल है उसमें आपको ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाएगा। तो आप देखिए, वापस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। Now see, I have drawn again the tires. So here it was the deflated. यहाँ पे हमने कुछ भी एयर नहीं ब्लो किया था, तो वैसे ही था टायर। फिर हमने क्या किया था, वेट इस टायर में एयर ब्लो किए, है ना, तो इसने स्पेस भी कंज्यूम कर लिया और वेट भी इसका भारी हो गया। देन व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड हीटिंग दिस टायर। ओके, तो जैसे हम हीट करने लगे तो क्या होगा, ये जो अंदर का जो हमने एयर इसमें ब्लो किया था, वो एयर के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाएंगे, मतलब पार्टिकल्स बड़े हो जाएंगे। और पार्टिकल्स बड़े हो गए तो क्या होगा, ये स्पेस में वो रह नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तुरंत जैसे हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे ये टायर फट जाएगा, ठीक है, टायर विल ब्लो ऑफ, ये फट जाएगा। फट जाने से क्या होगा, पूरा जो एयर है वो निकल जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि एयर एक्सपांड्स ऑन heating. As we are giving heat to this air, the particles will expand and ultimately the tire will burst. Okay, tire will burst. So this tells you that air expands on heating. And as you know that the fourth property is air supports burning. So in this experiment we can also see. Now here you can see that as the air is inside this tire and we are heating it, and this gives you the temperature of this tire rises up, ठीक है, टेम्परेचर इसका बढ़ते जाता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीटिंग कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो हीटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस हीटिंग इज बिकॉज ऑफ द एयर आउटसाइड द environment. Okay, so here in the environment air is present, that is why this heating is getting continued. वापस से मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। Now see, I have taken the example of a burning candle. मैंने एक कैंडल ले लिया है, तो कैंडल को मैंने क्या किया है, इसको मैंने बर्न किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज गिविंग यू लाइट। हियर ऑल्सो आई हैव टेकन अनदर कैंडल, मैंने यहाँ पर भी एक कैंडल ले लिया है जो कि गिविंग यू द लाइट। एंड वॉट आई डिड इज आई हैव प्लेस्ड दिस कैंडल, मैंने ये कैंडल को ऐसे ही टेबल के ऊपर रखा है, और ये कैंडल को देखिए मैंने क्या किया है, एक जार के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ लिड, यहाँ पर ये जार के ऊपर मैं एक ढक्कन रख दूंगी, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट, थोड़े देर के बाद आप देख पाओगे कि ये जो कैंडल था अंदर, ये कैंडल अपने आप
जो लिड था बर्न हो रहा था वो अपने आप स्टॉप बर्निंग हो गया, इट हैज स्टॉप्ड लिटिंग अप। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कैंडल आपका लाइट नहीं दे रहा है और कैंडल क्या हो गया, आपका बुझ गया है ना। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल आपने जला कर रखा है वो कंटिन्यू जल रहा है। तो ये क्यों हुआ है आप देख पाओगे कि क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है ये क्या है, एयर है इसके सराउंडिंग में, इसीलिए ये जल रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एयर को अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर लीड लगा कर रख दिया है और हमने यहाँ पे जो भी अंदर के एयर थे उसको सबको निकाल दिया है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना देर तक ये कंटेनर के अंदर एयर था उतना देर तक ये कैंडल जल रहा था। एंड as the air has been utilized by the candle, there is no air inside the jar. Okay, so जैसे जैसे टाइम जा रहा था तो इसने अपना पूरा एयर यूटिलाइज कर लिया था, और जैसे ही एयर इस जार में ख़त्म हो गया तभी क्या हो गया, कैंडल अपने आप बुझ गया, है ना। सो दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो एयर रहेगा तो ही बर्निंग पॉसिबल है, अदरवाइज बर्निंग इज नॉट possible. Okay, so I have given you the properties of air and I have explained it also, so go through the explanation once again and you will understand. So let us go for the next concept of air. Now you can see the activities given in your book. टेक्स्ट बुक में भी आपको, जैसे मैंने आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करके दिखाया था, उसी टाइप के एक्टिविटीज़ आपके बुक में भी दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिफ्लेटेड बैलून है, यहाँ पर इन्फ्लेटेड बैलून है। सो यू कैन सी द एयर इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। यहाँ पर वेट भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लाइट वेट हो गया है और यहाँ पर हेवी वेट है ना। तो ये आपका जो भी बैलेंस है वो नीचे आया है और यहाँ पर ऊपर चला गया है। दिस शोज दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट। देन यू हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द एयर एक्सपेंड्स ऑन हीट. Now here it has been given an example with a balloon where you have put a hot water ball. तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, ये जो बॉटल है और ये जो बीकर है इसमें आपने क्या लिखा है, रखा है गर्म पानी, हॉट वाटर बोल. ओके, एंड दिस हॉट वाटर बोल is kept and inside that a bottle is kept. Okay, so bottle जो है उसमें क्या है आपका देख पा रहे हो, यहाँ पे बॉटल का माउथ है. Okay, and then you have the bottles containing hot water. Okay, and you can see that whenever hot water is there, यहाँ से steam जाएगा आपका, और steam क्या करेगा, steam ये बैलून को inflate करेगा, that is फुगा देगा. ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पर कोल्ड वाटर लिया है, यहाँ पर देखिए ये बोल में आपने कोल्ड वाटर लिया है, तो कोल्ड वाटर में तो कोई भी स्टीम नहीं होता है, तो इसलिए देखिए ये वाला बैलून को हम फुगा नहीं पाए, ये वैसे की वैसे ही रह गया है. ओके, सो दिस शोज दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. ओके, now this is again the experiment regarding your air supports burning where you have the candles. तो आप देख पा रही है जो कैंडल ऐसा ही जल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है बर्न, और यहाँ पर हमने जो लिड रखा है देखिए तो इसमें क्या हो गया है, it stopped burning, isn't it? So this shows that air supports burning. So you have to go through these activities. Now the next important use of your air is used for your breathing purpose. So respiration के पर्पस के लिए आपको एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर में क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस.
So in air you find oxygen, isn't it? So oxygen gas is important for your breathing process. So whatever oxygen is there in your air, you can utilize that oxygen for your breathing process. That is, breathing is the process of taking in and giving out air. Okay, so all the living things need air for breathing purpose, and if air is not there, that means that oxygen is not there, and that means the living things cannot survive. Okay, so for breathing you need air, and inside air there is oxygen, and breathing process needs oxygen. Okay, so because of that, breathing process, all living things need air for their survival. Okay, now plants breathe through stomata that are present on the lower surface of leaves. Different animals have different organs. Most aquatic animals breathe through gills. Insects like ants breathe through spiracles. Human breathes in and breathe out air through their nose. The act of taking in oxygen or air is called inhalation, while the act of giving out air is called exhalation. Now see what I have written, that breathing process is very important for survival of living things. Okay, so living things, breathing in of air, that is living things when they take air inside their organ, so that is called as inhalation, and breathing out of air is called as exhalation. तो you can see that living things जो है उनको air inside your body भी लेना पड़ता है और उसको outside और उसको out भी करना पड़ता है ना. So breathing in of air, जब हम breathe करते हैं तो that time when you are taking air inside your body, that is inside your lungs, that time it is called as inhalation. And when you are taking out the air from your lungs, that time it is called as exhalation. तो ये दो वर्ड आप ध्यान में रखिए, exhalation and inhalation. Inhalation means taking in air or breathing in of air, or here breathing out of air, that is exhalation. Okay, now every living things have different organs to take up air. Now you can see I have given a small chart about the special organs which carry out the breathing process. So in case of humans, you can see the air is taken through the nose and lungs perform the breathing process. तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, नोज से एयर को लेते हैं और फिर जो भी ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो लंग्स के थ्रू होता है. ठीक है. देन यू हैव बीन गिवन विद द aquatic animals as well as the fishes which uses their gills for breathing process. Then ants are there which use the spiracles of theirs for the breathing process. And then you have the plants. Plants have stomata that are present on the lower surface of leaves, and that is responsible for the breathing process. So you have been given with certain organs of certain living things. So please keep in mind these organs. Okay. So यहाँ पे humans as well as your other animals भी they are also taking their air and the lungs are performing the activity. Okay. So you have been given with this chart regarding the organs that are carrying out the breathing प्रोसेस. तो आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि फिशेज और एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, तब आप लिख सकते हो इट इज गिल्स. ओके. एंड प्लांट्स आर ब्रीदिंग थ्रू व्हाट, स्टोमेटा एंड स्पाइरकल. सो दिस कैन बी योर MCQ क्वेश्चंस.
Now, you know that air has useful composition inside it, that is all the gases. आपने पढ़ा है कि जो भी गैसेस प्रेजेंट है एयर में वो सब क्या है, वो बहुत ही important है for the survival of living things. And also I have told you that there are certain things in air like what? Germs, then dust particles, देन स्मोक. तो ये सब जो तीनों चीज मैंने लिखे हैं, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये सब क्या है, ये सब भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं. एंड दीज आर व्हाट? दीज आर harmful things present in air, and these things, if they are present in more amount, then they will cause pollution. Okay, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो germs है, dust particles, smoke that are present in your air. Okay, so these are considered to be harmful things and this may cause your pollution. Okay, तो इससे क्या होता है? Pollution means harmful activity. Okay, and these things, germs, dust particles, smoke in air, they are called the pollutants. ये जो है इसको हम बोलते हैं pollutants. Okay, so let me write it properly. Pollutant मतलब things that are polluting the air. Okay, so this is called, these things are the pollutants which causes pollution. So now as you can see that air pollution is the pollution caused when smoke and harmful gases from vehicle, factories and other sources enter the air. Any substance that pollutes the air is called pollutant. तो मैंने आपको पहले ही बताया है pollutant कौन से है. देखिए, smoke है, dust है and harmful gases or the germs, whatever is present in the air that make our environment dirty. So these are called as pollutant. They decrease the quality of air and make it unhealthy for breathing. Germs like bacteria and viruses are also pollutants. Their presence in air also reduces the quality of air. So I have already explained you that the things which are harmful to us are called as the pollutant, and this will cause air pollution. Or because of air pollution, what will happen? The quality of air, means whatever air we are breathing, that air is improper or that is harmful or that is not so beneficial to us. Okay, so this is regarding your pollutants. Now how the air is getting polluted, कैसे air pollute होता है. Okay, so कैसे होता है आपको पता है. एयर पोल्यूशन का डिफरेंट जो रीजंस है, व्हाट इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, in fact, then the smoke from the factories, isn't it? Then you have forest fire, you have dust storm, you have volcanic eruptions. So all these causes your air pollution. So एयर पोल्यूशन के डिफरेंट रीजंस हैं, कैसे एयर पोल्यूशन होता है, कैसे एयर में जर्म्स, स्मोक कैसे मिक्स हो जाते हैं, इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के कारण इस तरह के चीज़ें होते हैं. सो लेट अस राइट व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. Now you can see that I have explained the causes of air pollution through this chart. तो कैसे एयर पोल्यूशन होते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स है वो मैंने आपको एक चार्ट में लिख कर दिया है. तो इससे क्या होगा, आपको इजी होगा पॉइंट्स पढ़ने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, ह्यूमन एक्टिविटी कैन कॉज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन इन एयर. सो ह्यूमन एक्टिविटी कौन से एक्टिविटीज से हमारा एयर पोल्यूट हो जाता है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे. देखिए, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो धुआं आपके
गाड़ी से निकलते हैं वो एयर के साथ मिक्स होता है और इससे क्या होता है, एयर पोल्यूट हो जाता है, एयर खराब हो जाता है ना। फिर है आपका स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से भी केमिकल जो फैक्ट्रीज रहते हैं उसके जो चिमनी से आपने देखा होगा बहुत जैसे काले काले सब धुआं सब निकलते रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, आप जब भी फटाके फोड़ते हो उस समय भी आपने देखा होगा कि एक आपको एक स्मोक जैसे दिखाई पड़ता है, तो वो भी आपके एयर पोल्यूशन का वन ऑफ द कॉज है। देन यू हैव बर्निंग ऑफ गार्बेज, तो आपको जो गार्बेज मीन्स जो कचरा जो रहता है जैसे प्लास्टिक, then your other garbages whatever is there, when they are burnt that time also they release smoke। जब ये प्लास्टिक वगैरह भी बर्न किया जाता है तो क्या होता है, वो भी एक स्मोक प्रोड्यूस करता है और वो स्मोक से भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स मीन्स जैसे कि आप पेट्रोल डीजल, देन योर कुकिंग गैस, एवरीथिंग यू आर यूजिंग एंड दैट विल कॉज द एयर पोल्यूशन। उसके बाद है बर्निंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, सो यू आर यूजिंग insecticides and pesticide during your agriculture purpose, that time also when these chemicals are burnt, that time also you have the smokes and that will cause the air pollution। okay, now second one is the volcanic eruption। तो ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है। वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता है ना कि जब भी माउंटेन्स में टेम्परेचर मोर हो जाता है तो वो क्या होता है, वो एक ब्लास्ट होता है, तो उससे क्या होता है, वॉल्केनिक में इरप्शन में गैसेस अदर्स एंड अदर थिंग्स आर रिलीज्ड आउट, तो दैट इज कॉल्ड द वॉल्केनिक इरप्शन। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो, ये प्रोसेस जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस समय भी क्या होता है, लॉट्स ऑफ स्मोक इज रिलीज्ड, सो दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। सो जिस जगह पर ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिन माउंटेन्स पर ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है, उनके सराउंडिंग एरियाज़ में एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जब कभी आपने देखा होगा कि डस्ट स्टॉर्म भी होता है, ओके, जोर से हवा आ रही है और हवा के साथ मिट्टी सब उड़ रहे हैं, उस समय भी आपको एयर पोल्यूशन होने का संभावना होता है, ठीक है। फिर यू हैव फॉरेस्ट फायर, समटाइम्स बाय नेचुरल वे ओनली देयर इज फायर इन द फॉरेस्ट में भी फायर कभी कभी नेचुरल वे से वहाँ पर फायर हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट जो कि बहुत ही कंडेंस फॉरेस्ट रहते हैं, बहुत घना जंगल जो रहता है, उधर क्या होता है, पेड़ एक के बाद एक जलते रहते हैं और इससे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है और इससे एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। Then you have air pollution through your germs, the virus and bacterial particles which are also mixed up with air will cause you air pollution। So ये बैक्टीरिया और वायरस कहाँ से आता है, because of your spitting मतलब आप जब थूक फेंकते हो उस समय आपके जो थूक में जो जर्म्स होते हैं वो आपके एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। देन व्हेन यू स्नीज, आप जब छींकते हो, जब आप खांसते हो, उस समय जो भी आपके पार्टिकल्स आपके मुंह से माउथ से निकलते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, एंड दैट विल गिव यू द जर्म्स इन एयर एंड दैट विल कॉज द एयर पोल्यूशन। द स्टैग्नेंट वाटर मीन्स जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है वहाँ भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है, एंड दैट इज वाई देयर ऑल्सो एग्जिस्ट सर्टन जर्म्स विच विल ऑल्सो पोल्यूट द एयर। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट में मैंने आपको हर एक एक्टिविटीज लिख कर दिया है जिससे कि आप बता सकते हो कि दीज आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, now we will learn what are the effects of air pollution. If the air is impure, then what will happen? So if air pollution is there, that time it will affect your human health as well as the nature. So when human health is affected because of air pollution, so you
you get so many of health problems. Okay, so जब भी there is air pollution, human health is suffered. Okay, human health में क्या होता है, human health में बहुत सारे health problems will grow, isn't it? तो उसमें से क्या है, first is asthma, that is breathing problem is there, then tuberculosis will be there. Tuberculosis means lungs को affect करता है. चेस्ट पेन, ज़्यादा डस्ट वगैरह हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन विल बी वन ऑफ द कंप्लेन. देन यू मे गेट फ्रीक्वेंट ये फीवर, एंड देन यू कैन हैव हेडेक. देन यू मे हैव इरिटेशन ऑफ आईज. आईज हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि आईज में खुजली हो रही है या आईज रेडनेस हो रहा है आपका. तो ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन के वजह से होता है. फिर यू मे गेट स्नीजिंग एंड कफिंग. आप बार बार छींकोगे, नहीं तो खांसोगे. दिस ऑल थिंग्स, और देयर विल बी ऑलवेज सर्टन प्रॉब्लम इन योर थ्रोट. आपके गले में भी आपको टॉन्सिल वगैरह का भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है. देन बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण ह्यूमन हेल्थ में ये सब इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, सो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो इफेक्टिंग नेचर. जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वो समय क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है उसमें भी चेंजेस आते हैं. क्योंकि जैसे कि हमें ठंडी के समय भी बहुत गर्मी लगता है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें एयर पोल्यूशन काफ़ी हद से ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. Now you can see that so many preventive measures are there to keep your air clean. So you have to reduce the use of your fuels. Okay, then you have to use the wind energy, that is the renewable sources you should try to use. Then whenever you want to go for a smaller distance, use public transport instead of taking your private vehicles, or walk to that place. Then you can use your CNG and LPG fuel for your vehicles so that harmful gases are not emitted much. Then factories and industries should be set up away from residential areas, and whenever you are trying to burn the garbages, you should go for the sensible process of garbage cleaning. Then you should have a good personal and housekeeping practices so that your environment is clean. Okay, so let us explain how it is. Now see, I have written the main preventive measures what you have to take. ठीक है, सो लेट अस सी रिड्यूस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिड्यूस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मीन्स यू कैन यूज़ योर प्राइवेट व्हीकल्स लेस. तो आप जब भी किधर छोटे छोटे जगह पे जाने की आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ कीजिए. नहीं तो बाई वॉकिंग, इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन go by walking. Please avoid using your private vehicle frequently. तो आप अपना खुद का व्हीकल यूज़ करने के लिए थोड़ा कम यूज़ कीजिए. ठीक है, so that you can reduce the smoke in the environment. Then you can use, instead of petrol or diesel की गाड़ी, you can use the CNG and LPG cylinders for your vehicles. Then whenever you want to dispose the garbage, आपको कचरे वगैरह फेंकने हो गए तो आप उसको जलाइए मत. आप क्या कर सकते हैं, आप दूर कोई ग्राउंड में जाके उनको क्या कीजिए, एक छोटा सा खड्डे करके उसके अंदर डालते हैं गार्बेजेस. तो ये एक्चुअली ये जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो लोग हैं ये सब सेंसिबल डिस्पोजल करने की कोशिश कर रही हैं आजकल,
वो क्या करते हैं कि जो कचरे रहते हैं उसको जलाते नहीं हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बड़े से खड्डे में डाल देते हैं और खड्डे को क्लोज कर देते हैं, सो दैट वॉट एवर इज द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स दैट विल गिव यू मैन्योर. ओके, देन गुड पर्सनल एंड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस शुड बी देयर. दैट इज आपको क्या करना है, जब भी आप स्नीज करते हो, काफ करते हो, तो प्लीज कवर योर माउथ सो दैट जर्म्स डोंट कम आउट एंड दे मिक्स विथ एयर. ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि स्पिटिंग, स्नीजिंग, काफिंग, ये सबसे क्या होता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस गेट रिलीज्ड इन द एयर, है ना, वो जो चार्ट में मैंने आपको लिख के दिया था. ठीक है, तो स्पिटिंग मतलब थूक फेंकना, फिर आपका खांसी का या आपको छींक आती है तो आप रुमाल या हैंकरचीफ का यूज जरूर कीजिए. ओके, एंड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस शुड बी मेंटेन, दैट इज सराउंडिंग आपका क्लीन होना चाहिए. गार्बेजेस जो है आप उसे ठीक तरह से डिस्पोज कीजिए. ठीक है, so preventive measures to keep air clean, then you have so many measures which you can follow and you can keep your air clean. And above all, सबसे important है, plant more trees and save trees. Okay, so most important and above all, the preventive measure is to plant more trees and save the trees, so that this planting of trees and saving of trees keeps your air clean. So with this topic we conclude with this chapter, that is air. So please go through the chapter, read it, and whatever chart I have given you, go through it so that it will be easy for you to learn. Okay, so read the chapter and see whatever things is given in the chapter and clear about your concept. Thank you.